sent from D to B, it will record port number of D. When the packet B is sending the packet to A, then the port of B will be recorded, that is port number 2. And when the station C has sent a frame to D, the port number of C will be recorded. So just merely watching the information about the source addresses in the frames and the packets, the switch is able to learn the port numbers and the addresses of the machines. It is able to learn and record it in the forwarding table. So now this is okay with the transparent switches to learn about this ports and the addresses. But the real trouble is caused when there are 2 or more switches which are connecting the different LANs. Now see figure 17.5 in the next page. We have the looping problem, and now see figure 17.5a station. There are 2 LANs. LAN 1 on the above side, that which is connecting the 3 machines using a hub, that is A, B, C. There are 3 machines. And in LAN 2 there are 3 machines D, E, F, which are on LAN 2, which are connected to some switch or some hub. A hub. Okay. So we have a star topology here. But the switches are transparent switches which will learn and store the addresses in the forwarding tables after the packets start floating in the network. Now you see how this configuration in part A, figure 17.5a, will cause looping problem. Now you see A wants to send a packet in part figure A, 17.5a. On top you can see A packet to D. So it has a packet AD and it wants to send to D. Now there is no route recorded in switch 1 as well as switch 1 is on the left hand side, switch 2 is on the right hand side. Both the tables are empty, forwarding tables are empty. Now it will send the packet and it will go, it will just broadcast it, it will just forward. So it is connected, machine connected to hub, hub will broadcast it to all the ports connected to the hub. So there are 2 lines which are going out from hub of LAN 1 to switch 1 and switch 2. दोनों switches से connected है hub, और आपका दोनों में क्या आ जाएगा, address आ जाएगा कि source address is from machine A. So it will record address as A and port number as 1, because you can see switch both the switches have to port 1 up and port 2 which is connecting to LAN 2. तो स्विच का पोर्ट जो है 1 जो है वो कनेक्टेड है LAN 1 से, और स्विच का पोर्ट 2, हर दोनों स्विचेस का जो पोर्ट 2 है वो LAN 2 से कनेक्टेड है. सो अभी कहाँ से आपका पैकेट आ रहा है, ऊपर वाली लाइन से आ रहा है, और उसकी सोर्स एड्रेस क्या है, A, मशीन A, एंड इट विल रिकॉर्ड एज कमिंग फ्रॉम पोर्ट 1. तो दोनों ने अपने दोनों स्विचेस ने लेफ्ट हैंड स्विच एंड राइट हैंड स्विच ने जो कि पैकेट LAN 1 से आया, फ्रेम 1 जो है LAN 1 से आया, उन दोनों को रिकॉर्ड किया स्विच 1 में भी और स्विच 2 की भी फॉरवर्डिंग टेबल में. नाउ व्हेन द स्विच डज नॉट हैव अ फॉरवर्डिंग टेबल कंप्लीटेड, दोनों स्विचेस क्या करेंगे, जब हमारे पास स्विचेस में फॉरवर्डिंग टेबल कंप्लीट नहीं होती तो वो फर्दर ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं. फॉरवर्डिंग सिंपल सारी जितने भी आउटगोइंग लाइंस होती हैं सबको फॉरवर्ड कर देते हैं. और अब दोनों ही स्विचेस के पास पूरी कंप्लीट नहीं है फॉरवर्डिंग टेबल, दे डजंट नो कि कौन सा वाला डी पोर्ट है, डी कहाँ पर कनेक्टेड है, तो क्या करेंगे, दोनों ही फिर फॉरवर्ड कर देंगे. तो वो लैंड में फॉरवर्ड करेंगे क्योंकि पोर्ट 1 से आया है, तो पोर्ट 2 पे जो है वो फॉरवर्ड करेंगे. दोनों के पोर्ट 2 लैंड 2 से कनेक्टेड है. सो all the machines connected to port 2, that is hub 2 is connected to port 2 and it will receive AD packet, और उसमें क्या आएगा, पोर्ट 1 से वो आया है. ठीक है. Now hub doesn't have any capability of distinguishing between the एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस. तो वो क्या करेगा, वो फिर फॉरवर्ड कर देगा ई और एफ पर. अब जो इसके पास पैकेट आया है, सारी मशीन्स के पास और हब के पास जो पैकेट आया है वो आया है LAN 1 से, और LAN 1 से जो पैकेट आया है वो अब आगे फॉरवर्ड करना है LAN 2 को. LAN 2 पर आ गया है, LAN 2 के पास जो पैकेट आया अभी भी डी का एड्रेस नहीं पता है किसी, तो वो फिर फर्दर फॉरवर्ड करेंगे पैकेट्स, और वो फॉरवर्डिंग दोबारा से क्या होगी, इट विल फॉरवर्ड बैक टू द स्विचेस एंड टू LAN 1. तो आप सी में देखिए, बोथ द स्विचेस फॉरवर्ड द फ्रेम. अब जो वो फॉरवर्ड करेंगे फ्रेम को,
अब वो फॉरवर्ड कहाँ पर करेंगे, दोबारा से लैन 1 पर फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन अब जो पोर्ट एड्रेस स्टोर होगा पार्ट सी में, देखो फिगर सी में जो एड्रेस और पोर्ट नंबर है, दैट इज एड्रेस इज ए, source is still A, but the destination port number, the source address port number has changed because वो port 2 से दोबारा से फ्रेम फॉरवर्ड हो रहा है। तो लैंड 2 से जब दोबारा से फॉरवर्ड होगा तो उसमें पोर्ट नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। दोबारा से लैंड 1 को जो है अपना ही सेम फ्रेम मिलेगा, लेकिन उसकी कॉपी मिलेगी। कॉपी में क्या होगा, ए से डी तक फ्रेम डेटा को जाना है, लेकिन पोर्ट नंबर 2 से वो फ्रेम आया। फिर दोबारा लैंड पर वो फॉरवर्ड होगा लैंड 1 पर, उसके पास भी एड्रेस नहीं है, ना स्विच के पास एड्रेस है डेस्टिनेशन एड्रेस का कि कौन से पोर्ट से कनेक्टेड है डी, और फिर वो दोबारा से वो सेम कॉपीज को दोबारा से रेप्लिकेट करे, दोबारा से फॉरवर्ड कर देगा नए फ्रेम की तरह। एंड यू कैन सी डी पार्ट बोथ स्विचेस फॉरवर्ड द फ्रेम। और अब यहाँ पर दोबारा से क्योंकि लैंड 1 से आ रहा है, लैंड 1 से जो स्विच कनेक्टेड है उसका पोर्ट नंबर है 1, दोनों स्विचेस का पोर्ट नंबर 1 जो है लैंड 1 से कनेक्टेड है। दोबारा से फ्रेम की जो एंट्री होगी टेबल में वो क्या हो जाएगी, ए एंड 1। तो दिस टाइप ऑफ लूपिंग विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, बिकॉज हमारे हब्स के पास कैपेबिलिटी नहीं है एड्रेसेस को वॉच करने की, और हमारे जो स्विचेस हैं वो जब लर्निंग कर रहे हैं, लर्निंग फेज में है, तो लूपिंग प्रॉब्लम्स आएंगी एंड देयर विल बी मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फ्रेम coming from different lands. तो वो लैंड 1 को लगेगा and receiving it from land 2, and this is a different packet I have to forward, और लैंड 2 को लगेगा ये मेरे पास दूसरा फॉर्मेट आया है, ये मुझे इसको आगे फर्दर फॉरवर्ड करना है टू लर्न एंड टू रिकॉर्ड द डेस्टिनेशन एड्रेस। So this kind of a looping problem will occur in the switch if the 2 or multiple lands are connected using 2 or more switches. So to avoid these looping problems, we can have this spanning tree algorithm. Okay, you have done it in data structures. Have you done algorithms in data structures? Spanning tree किया उसमें आप लोगों ने? No, ma'am, not yet. Okay. ठीक है. Basically, I'm not going into the details how spanning trees are done, constructed. वो हम बाद में करेंगे. अपना हमारा भी शायद data link clear network clear protocols में कहीं होगा spanning tree. We'll discuss it in detail further if it is there. So meanwhile, spanning tree algorithm में हम basically क्या करेंगे कि हम एक सिस्टम को you can see figure 17.6 first कैसे बनाना है हमें spanning tree. पहले 17.6 में कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, नया कॉन्फ़िगरेशन जिसमें कि 4 लाइंस कनेक्टेड हैं और हमारे पास 4 स्विचेस हैं. So you can see the actual system here. You can see 4 boxes on the 4 corners, top left, top right, and bottom left and bottom right. There are 4 switches: S1, S2, S3, and S4. Sorry, S4 and S5, and in the middle there is one more switch, S5. तो ये 5 स्विचेस हैं जो हमारे कनेक्ट कर रहे हैं, और 4 हमारी लाइन्स हैं. लैंड 1 इन द टॉप मिडिल, इन द मिडिल, right middle and bottom middle. So you can see the diagram, part A, we have 5 switches, S1, S2, S3, S4, S5, and there are 4 LANs which are connected to each other using switches, LAN 1, LAN 2, LAN 3, LAN 4. तो अब हमें जो स्पैनिंग ट्री बनाना है, हम क्या करेंगे, इसकी नोटेशन हमारी क्या होगी कि अगर स्विच 1 से LAN तक, किसी भी स्विच से LAN 2 तक अगर कोई पैकेट भेजेंगे तो उसका वेट हम मानेंगे 1. That we have to take कैसे स्पेलिंग ट्री में हम बेसिकली जब कंस्ट्रक्ट करते हैं, we are discussing it in not in detail but in short. हम क्या कर रहे हैं स्पेलिंग ट्री में, क्या करते हैं, हर नोड को एक वेट देते हैं कि कितनी जो है डिस्टेंस कवर हो रहा है या कितना वेट, कितनी कॉस्ट लग रही है एक स्विच से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, और जहां पर मिनिमम कॉस्ट होगी हम वो वाला जो है नोड को कंसीडर करेंगे फॉर फॉरवर्डिंग द पैकेट. और बाकी जो हमारा पाथ है, हम क्योंकि अभी हमारे लूप्स कंस्ट्रक्ट हो रहे थे, पिछली वाली प्रॉब्लम हमारी क्या आ रही थी ट्रांसपेरेंट स्विचेस में, जब हम मल्टीपल स्विचेस के थ्रू जो है पाथ कंस्ट्रक्ट कर रहे थे और फॉरवर्ड करने की कोशिश कर रहे थे डेटा पैकेट्स को, उससे क्या हो रहा था कि हर स्विच जो है उसको फॉरवर्ड कर रहा था और सारी लाइन्स में वो फॉरवर्ड हो रहा था, तो उससे लूप्स क्रिएट हो रहे थे. अब हम क्या करेंगे, लूप्स को अवॉइड करने के लिए स्पैनिंग ट्री बनाएंगे, और स्पैनिंग ट्री बनाने के लिए हमें सबसे पहली टेक्निक क्या होगी, हर नोड पर हमें फर्दर फॉरवर्डिंग की कॉस्ट जो है, नेक्स्ट नोड को फॉरवर्ड करने की कॉस्ट को कंप्यूट करना पड़ेगा, और उस पाथ पर ही सिर्फ पैकेट फॉरवर्ड होंगे जहां पर हमारा कॉस्ट मिनिमम होगी.
ठीक है, तो आप फिगर 17.6 बी में देखो कि हम कॉस्ट किस तरह से निकाल रहे हैं। रिप्रेजेंटेशन है सिर्फ ये कि अगर किसी स्विच से लैन तक हमारा अगर जा रहा है कोई डेटा फ्रेम, तो हमारी कॉस्ट होगी 1, और अगर लैन से कॉस्ट होगी 0। वेट फॉर अ मोमेंट। Yeah, students, are you there? Yes, ma'am. Yeah. Sorry, today we have so many technical glitches. Very sorry. So next is we were discussing that from any switch, if we are sending the data to LANs, then we'll assume the cost is 1, and from LAN to switch, if we are sending the data, the cost will be 0. You can see all the arrows coming out of the LANs to the switches will be 0. The arrows going into the LANs from the switches is 1. So you can see the costs are written here, and depending on these arrows and the costs coming out, will compute the cost of the entire path. Now we have a path, so we assume that S1 is the root. So हर switch का S1, S2, S3, S4, S5 हर स्विच का जो है एक अपना आईडी है, और जिसका स्मॉलेस्ट आईडी होगा स्टार्टिंग में वो अपने आप ऑटोमेटिकली करते हैं, बट फॉर दिस वी आर डूइंग इट मैनुअली. सो वी आर अज्यूमिंग दैट S1 हैज द लोएस्ट ऑफ आईडीज. अगर लोएस्ट आईडी है S1 का, तो S will be the root of the tree. So root of the tree will be S1,
So we'll start computing the cost of the whole path from S1. So now see figure 17.7, finding the shortest path and the spanning tree using the S1 as the root. So S1 is the root, it is the black one, the dark one, and S1 से हमने लैंड अगर 1 पे जाना है तो कॉस्ट क्या होगी, 1 होगी, बिकॉज इट इज टुवर्ड्स लैंड 1, एंड S1 से अगर लैंड 2 पर भी जाएंगे तब भी हमारी कॉस्ट 1 होगी. और लैंड 2 स्विच पे जाने की, स्विच S4 पे जाने की कोई कॉस्ट नहीं है, सिर्फ रिसीव करने की जाने की कोई कॉस्ट नहीं है, तो इट विल रिमेन सेम. तो S4 पर जो हमारी कॉस्ट है वो दैट विल बी सेम एज लैंड 2. तो लैंड 2 और S4 की जो कॉस्ट है दैट इज सेम 1. फिर S4 से बाहर अगर जा रहे हैं लैंड 4 पे तो कॉस्ट 1 और आ जाएगी, और उसके बाद वहां से उसके बाद S5 पे जाएंगे तो कॉस्ट विल बी देयर विल बी नो कॉस्ट. तो 1 + 1 ऐड होके लैंड 4 पर क्या हो जाएगी, कॉस्ट 2 हो जाएगी. सिमिलरली अगर लैंड 2 से हम स्विच S3 पर जाएंगे तो इट विल रिमेन सेम, द कॉस्ट विल रिमेन सेम which was at लैंड 2. लैंड 2 पे कॉस्ट 1 थी तो S3 पर भी कॉस्ट थी. तो अगर कोई पैकेट S1 से रूट S1 से आपकी लैंड 1 पे जा रही है तब कॉस्ट क्या होगी, 1. लेकिन 1 से आगे फर्दर अगर S2 पर जा रही है द सेम कॉस्ट, नो कॉस्ट, दैट इज 1 विल रिमेन सेम. बट S2 से अगर लैंड 2 पर जाना है तो देयर विल बी 1 एडेड टू द प्रीवियस कॉस्ट. तो S2 तक आने की कॉस्ट क्या है, 1, और लैंड 3 तक जाने की कॉस्ट क्या है, 1 + 1 इज दैट इज 2. तो लैंड 3 पे जाने की कॉस्ट हो जाएगी 2. तो दैट विल बी द पाथ. और अब आप देखिए कि हमारे दो कनेक्शंस ने, इनफैक्ट 2 नहीं 3 कनेक्शंस हमने कट कर दिए. अगर फिगर 17.6 का बी पार्ट अगर आप चेक करो तो उसमें S3 से लैंड 4 वाला जो कनेक्शन है वो हमने कट कर दिया है. देयर इज नो नीड बिकॉज S3 कैन बी रीच्ड इन अ लोअर कॉस्ट. आप देखो क्यों हमने कट किया है, ये वाला पार्ट हमने S3 से लैंड 4 का जो कर दिया स्पैनिंग ट्री बिकॉज इट वाज क्रिएटिंग लूप्स. क्योंकि S3 पर हम वाई लैंड 2 S4 एंड लैंड 4 एंड S3 भी जा सकते थे, तो हम S1 से लैंड 2 और S3 भी जा सकते. लेकिन कॉस्ट किसकी होती S3 तक जाने की, टू लैंड 2 ओनली. So we can go from S1 to S3. This was the smallest cost. Cost is 1. But अगर हम लैंड 4 के थ्रू जाएंगे तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी. Is that clear? Is it clear, students? Why we have disconnected between switch 3 S3 and LAN 4? Because the cost to reach S3 switch from S1 is lowest via LAN 2, not via LAN 4. Is that clear to all of you? Are listening? Yes, ma'am. Okay, fine. So next is LAN 3. अब LAN 3 की कॉस्ट आप देखो, LAN 3 तक जाने के लिए हमें लैंड 1 से और S2 से जा रहे हैं हम लोग, और लैंड 3 पे 2 आ रहा है हमारा कॉस्ट. लेकिन अगर हम वाया लैंड 3 से S3 जाएंगे, अब हमारा लैंड 3 और S3 के बीच का भी हमने कनेक्शन को हटा दिया है, बिकॉज लैंड 3 तक मैं ऑलरेडी जा सकती हूँ विद द सेम कॉस्ट. अगर मैं S3 से भी जा रही हूँ तब भी मेरी कॉस्ट 2 पड़ेगी उसको जाने की, और अगर मैं S2 से जा रही हूँ तब भी मेरी कॉस्ट 2 है. लेकिन अगर मैं लैंड 3 और S3 को कनेक्ट करती हूँ तो मेरा लूप क्रिएट हो जाएगा. फाइन. So I am disconnecting between S3 and LAN 3. And then the last one is LAN 3 to S5. हमने LAN 3 to S5 क्यों डिस्कनेक्ट किया, क्योंकि LAN 3 तक मैं ऑलरेडी पहुंच रही हूँ वाया LAN 1 and S2, तो मुझे रूट से वहां तक का पाथ मिल गया है. लेकिन अगर मैं LAN S5 से LAN 3 पे जाती हूँ, ये वाला रूट भी कंटिन्यू करती हूँ, तो मेरी कॉस्ट वैसे भी 3 पड़ेगी, मुझे जरूरत नहीं है, और वो लूप भी क्रिएट करेगा. So I have disconnected the 3 lines, S3 से LAN 4, S3 से LAN 3 and S5 से LAN 3. ये 3 पाथ मैंने डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, and now I have a spanning tree of 3 branches, 3 paths. One starting at root S1. S1 से मेरा एक पाथ बन रहा है LAN 2 and S3. दूसरा पाथ है मेरा S1 से LAN 1, S2 and LAN 3, एंड तीसरा पाथ मेरा है S1 से LAN 2 से S4, LAN 4 and S5. So I have 3 paths, which now all the 3 paths from the root of the spanning tree, that is S1 switch, are spanning the entire network. All the 4 lines are reachable, all the 5 switches are reachable. So my
spanning tree is complete. My spanning tree is the minimum spanning tree or minimal spanning tree, which is covering all the nodes, all the parts of the network, and there is no disconnection. And still, I am avoiding the looping problem in my network. Is that clear to all of you? Is the spanning tree construction clear to all of you, or should I repeat it again? Third semester. Is the spanning tree construction clear to all of you? Clear. Should I repeat it, Pallavi? No, ma'am. Okay, fine. So that was my spanning tree. So you can see based on this, I have the forwarding ports and the blocking ports. So go to figure 17.8 now. So based on the spanning tree construction in the previous figure 17.7, I have now my, now it's not that I have disconnected. The logical thing I'm telling you. केसेस पे हमने क्या परमानेंटली हमने इनको स्विचेस को डिलीट नहीं किया है, इनके डिलीट नहीं किया। बट हम उनको अवॉइड करेंगे। उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होगी कि हमारे पास दो पोर्ट्स है, फॉरवर्डिंग पोर्ट्स एंड ब्लॉकिंग पोर्ट। स्पैनिंग ट्री का पार्ट होंगे वो तो आपके होंगे, और जो बाकी स्विचेस की जो स्विच S3 पर और स्विच S5 पर मेरे पास बहुत सारे ब्लॉकिंग पोर्ट्स हैं। तो जो सॉलिड लाइंस हैं वो सारे के सारे वर्किंग पोर्ट्स हैं, फॉरवर्डिंग पोर्ट्स हैं। To avoid further looping, I am blocking some of the ports on the switches. तो आप देखो switch S3 पर It is like a, yes, so ma'am, it is like a spanning tree that we study in discrete structure, that the graph should be basically, we have to eliminate one connection such that basically the graph that is tree must be connected, and basically it should not form any loop. Like these two conditions. Yes. Okay, ma'am. So it is basically avoiding loops in the network, but still blocking some of the network. So switch पर देखो आपके पास two which is नहीं, and port number 3 which is connected to LAN 4. तो मैंने क्या किया, पोर्ट 1 को अभी ऑन रखा, फॉरवर्डिंग पोर्ट रखा, लेकिन पोर्ट 2 और पोर्ट 3 को दोनों को ब्लॉक कर दिया, जो कि कनेक्ट कर रहे थे LAN 4 और LAN 3 से, ताकि मैं लूप्स को अवॉइड कर सकूं। तो दे विल बी ब्लॉक्ड इन द टेबल, सो दे विल नॉट फॉरवर्ड द पैकेट्स फर्दर। उस पे कोई पैकेट फॉरवर्डिंग होगी ही नहीं ब्लॉकिंग पोर्ट्स पर 2 और 3 पर स्विच के। एंड स्विच 5 में भी जो पोर्ट 1 है वो ब्लॉक हो जाएगा, जो कि LAN 3 से कनेक्ट कर रहा है, और जो पोर्ट 2 है जो कि LAN 4 से कनेक्टेड, दैट विल बी द फॉरवर्डिंग पोर्ट, और वहां तक वो चलेगा, पोर्ट 2 चलेगा। ठीक है। सो विल बेस्ड ऑन द स्पैनिंग ट्री कंस्ट्रक्शन इन द प्रीवियस फिगर, in figure 17.8 we are blocking some of the ports on the switches, and that being done by the software which is installed on the switches. So this we have done just as a dry run of algorithm manually, but we don't have to do as a network administrator when we are installing the switches and we are constructing the networks. We don't have to do it manually as a network administrator. Fine. As a network designer, we don't have to do it. We have already softwares installed which will construct the spanning tree, and which will construct the forwarding tables in the switches, which will construct all the networking tables and the forwarding tables in the switch. So that all will be done automatically by the softwares in the smart switches. That's why known as smart switches nowadays. Now next is collision elimination. We basically avoid collision because now every now and then we'll be sending the packets. So there'll be shared medium. So this means
increasing the average bandwidth available to a host in the network. In a switched LAN, there is no need for carrier sensing and collision detection. Each host can transmit at any time. Now, basically, what happens? Suppose you are sending the data through two devices on a switch. अभी देखो आपने जो spanning tree किया है 17.678 में जो हमने पूरा टोपोलॉजी हमने नेटवर्क की बनाई है, that is very much simplified topology we have taken. हमने क्या किया, स्विचेस को भी एज ए नोड ले लिया, लैन को भी एज ए नोड ले लिया. लेकिन इफ यू इमेजिन इन द रियल वर्ल्ड, लैन कैन हैव, जो कि हमने पहले एग्जांपल किया था 17.5 का जिसमें लूपिंग प्रॉब्लम की थी, दो लाइंस ली थी हमने, छोटी सी लैन और लैन, तो में तीन हमारे डिवाइसेस थे, ए बी सी डी ई एफ, लेकिन रियल जब आप अगर फिगर अगर आप इमेजिन करो कि लैन से मतलब लैन 1 लैन 2 लैन 3 लैन 4, लैन 1 is treated as just a single like maybe लैन 2 maybe लैन 4 में multiple devices होंगे, at least there could be 2 devices मिनिमम भी. अगर हम मान के चलोगे अगर 2 डिवाइसेस कनेक्ट किया है तो कम से कम 2 डिवाइसेस हर लैन पे होंगे. तो क्या होगा, लैन पर जब डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, वाया स्विच ट्रांसमिट हो रहा है, तो क्या होगा, कोलिजन होगा कि एक पाथ को ले रहे हैं और बहुत सारी पल साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहे हैं. बिकॉज इट इज अ स्टार टोपोलॉजी और मे बी दिस इज अ शेयर्ड मीडियम ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, कोलिजन के चांसेस हैं. लेकिन हमारा स्विचेस में we avoid collision because we have a address space which is distinguished. So that we'll discuss later in further if that is in the syllabus. So that is taken care of. So हर station अपने time पे transmit कर सकता है. There will be no collision between the devices which are transmitting through the same LAN, same network via same switch. Okay, so that will be avoided by the switches. That is one of the properties of the switches. Another property and which is advantage of switch is connecting heterogeneous device. So heterogeneity means the LANs, the networks and the devices are of different capabilities. So as we discussed yesterday and in previous classes that the devices are of varying capability, varying capacity, and also we have discussed various types of transmission media I can use. तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो लैन मैंने कंस्ट्रक्ट की है वो हमेशा वायर्ड लैन ही होगी, या वो ट्विस्टेड पेयर को ही यूज कर रही होगी, या वो फेक्टर केबल को ही यूज कर रही होगी, या सारी की सारी फाइबर ऑप्टिकल केबल को ही यूज कर रही होगी. अब कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑफिस में लैन जो है ट्विस्टेड पेयर भी यूज कर, हब भी यूज कर सकता है, दूसरी लैन जो है वो कोएक्सियल केबल यूज कर सकती है, तीसरी वाली जो है फाइबर ऑप्टिक केबल यूज कर सकती है. तो सब अब हर एक की बैंडविड्थ, हर एक का जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट होगा, ठीक है. लेकिन स्टिल switches make it compatible and it makes us communicate within the incompatible or varying capability devices, and that means heterogeneity of the devices is taken care of by the smart switches now. So any type of device I can connect which are connected through various types of transmission media. So you can have a so as far as the switch is concerned, it does not change the link layer. So it does not, and as far as the format of the frame in the data link layer does not change. A switch can receive a frame from a device that uses twisted pair coaxial cable or at 10 Mbps and deliver the frame to another device that uses fiber optic cable and can receive the data up to 100 Mbps. So the data rate may be different, the transmission type will be different, the frame format at the LAN will be different, but जब तक कि data link layer का frame format same रहेगा. We discuss frame format when we'll be discussing the data link layer frames, addressing and all those things. So switch का जब तक कि data link layer का जो format same है दोनों devices से आने वाला outgoing और incoming, तब तक हमारा जो है communication is possible and it is transparent. There will be no problem with the different types of heterogeneous devices. And the last one is the routers. This is third type of device which is used to connect hosts and so as the name suggests, routers. Some people say they pronounce it as routers. I call it router. So routers are basically used at the network layer.
So basically, the what do you say, importance of routers come when we want to connect different types of networks. So एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करना, जहां पर हमें आईपी एड्रेस से डील करना है, जहां पर हमें इंटरनेट वर्किंग करनी है और इंटरनेट बनाना है, वहां पर हमें राउटर्स की जरूरत है. So now I'll give you an example, live example. Suppose मेरे पास have you visited the college? अभी तक आप कॉलेज में? Not yet. Not yet. Okay. We have 4 labs, computer labs in our college. कंप्यूटर लैब्स की बात करें और भी है, मतलब कंप्यूटर लैब्स हमारे डिपार्टमेंट की 4 लैब्स हैं, लैब 1, लैब 2, लैब 3, लैब 4. जितने भी हमारे सिस्टम्स हैं, अराउंड 200 कंप्यूटर्स जो हमारे कनेक्टेड हैं हमारे लैब्स में, they're all connected through switches. So we don't need a router because they're all part of the same system, same organization का part है. तो क्योंकि हमें ज्यादा सिस्टम्स को कनेक्ट करना है और हमें उसमें वर्डिंग करनी है आपस में, तो दे कैन ऑल बी कनेक्टेड थ्रू स्विचेस. तो वी डोंट नीड अ राउटर, क्योंकि हमारा आईपी एड्रेस अभी चेंज नहीं होगा, हमारा नेटवर्क जो है वो सेम नेटवर्क है, सब नेटवर्क हमारा सेम है. तो हमें जरूरत नहीं है कि हमारे डिफरेंट डिवाइसेस हमें कनेक्ट करने की जरूरत है. तो हमारे सारे स्विचेस से कनेक्टेड है. जब हमें लैन बनानी है और हमें सिर्फ अपनी लैन में ही उनको एप्लीकेशन करना, अपनी लैन पे ही एक्सपेरिमेंट करने हैं, सारा वहीं पर यूज करना है. हमें अपनी लैन का ही सर्वर यूज करना है, अपने डिपार्टमेंट का ही सर्वर यूज करना है. बट वी ऑल्सो हैव अ राउटर or we have some routers in the labs which are there to connect with the outer world. हमें जब नेटवर्क कनेक्टिविटी देनी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी जब लैब में देनी है, तो we will be needing a router. जब हमें आउटर वर्ल्ड से किसी और नेटवर्क से कनेक्ट करना है, किसी और आईएसपी से भी कनेक्ट करना है, किसी और आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना है, तब हमें राउटर की जरूरत पड़ेगी. तो जब हमें सिर्फ लैब में काम करना है और हमें लैब में एक्सपेरिमेंट्स बच्चों के करवाने हैं और हमें प्रैक्टिकल्स करवाने हैं, we don't need the routers. Okay, we only need switches to communicate amongst the students and the laptops or maybe the devices which are connected on the lab. तो जब हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ती है, हमें आउटसाइड दूसरे नेटवर्क से, दूसरे डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, तो हमें राउटर की जरूरत पड़ती है. और तब इम्पोर्टेंस आती है नेटवर्क लेयर की और आईपी एड्रेस. तो द थर्ड काइंड ऑफ अ नेटवर्किंग डिवाइस इज राउटर. So we'll discuss later in the book. So this is a router is a 3-layer device. It operates in the physical layer, data link layer and network layer. तो तीनों लेयर में काम करता है. At physical layer, it regenerates the signal it receives. तो हमें physical layer में basically क्या चाहिए, किस चीज की कैपेबिलिटी चाहिए, रिपीटर की कैपेबिलिटी चाहिए. तो नेटवर्क राउटर should be able to repeat the signal and regenerate the signal to its original strength if it is installed in the network. So it will do what the physical layer hub was doing or the physical layer repeater was doing. As a network link layer device, the router checks the physical addresses, that is the MAC address or the source and destination addresses contained in the packet. And at the network layer, the router checks the network layer addresses or the IP address. So router जो है 3-layer device है, वो physical layer addresses का भी ध्यान रखेगा, network data link layer addresses का भी ध्यान रखेगा, और network layer addresses that is IP addresses का भी ध्यान रखेगा. It is a 3-layer device. So 3 major differences between a router and a repeater and a switch is: a router has a physical and logical IP address for each of its interfaces. A router acts only on those packets in which the link layer destination address matches the address of the interface at which the packet arrives. अब राउटर क्या करेगा, सिर्फ उन्हीं पैकेट्स को जो और मुझे लैब के एक डिवाइस जो है, एक डेस्कटॉप से दूसरे डेस्कटॉप पर अगर डेटा भेजना है, तो मुझे स्विच की जरूरत है. ठीक है, तो मुझे सिर्फ लिंक लेयर एड्रेसेस की जरूरत है और मुझे लिंक लेयर कैपेसिटी की जरूरत है. तो राउटर में सिर्फ वो तभी उसको आगे फॉरवर्ड करेगा किसी भी पैकेट को, तभी उस पर एक्ट करेगा जब उसको दूसरे नेटवर्क पे भेजना है. ठीक है, तो जैसे ही लिंक लेयर एड्रेस सिर्फ चेंज हुआ, मेरा सिर्फ ये फिजिकल और मैक एड्रेस चेंज हुआ, मेरा एक डिवाइस एक लैब से दूसरी लैब में अगर मुझे डेटा भेजना है, या एक लैब के एक ही डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे डेटा भेजना है, तो राउटर जो है उसकी राउटिंग नहीं करेगा, वो सिर्फ उसको अपने आप ही स्विचिंग हो जाएगी, फॉरवर्डिंग अपने आप ही हो जाएगी उसमें.
सेकेंड लेयर प्रोटोकॉल, दैट इज डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। उसे सिर्फ फॉरवर्डिंग करनी है। अच्छा, ये नोड ए से आया, नोड बी पे भेज दिया, नोड सी से आया, नोड डी पे भेज दिया, इट विल डू जस्ट फॉरवर्डिंग। लेकिन वो राउटिंग टेबल्स में कब जाएगा और राउटिंग कब करेगा, एक्चुअली उसको इंस्पेक्ट कर कब करेगा पैकेट को, जब उसमें आपके पास किसी आउटगोइंग नेटवर्क, किसी और नेटवर्क पे आईपी एड्रेस हमारा चेंज हो रहा है, तब वो एक्ट करेगा। एंड राउटर चेंजेस द लिंक लेयर एड्रेस ऑफ द पैकेट बोथ सोर्स एंड डेस्टिनेशन व्हेन इट फॉरवर्ड्स द पैकेट। और वो जब फॉरवर्डिंग करता है पैकेट की एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे, डिफरेंट नेटवर्क पे, तब वो लिंक लेयर एड्रेसेस को चेंज करने की भी कैपेबिलिटी रखता है, जबकि स्विचेस जो है लिंक लेयर एड्रेसेस को चेंज नहीं करता। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्विच एंड राउटर। Now you can see figure 17.9. Assume an organization which is having two separate buildings, and the two buildings have the gigabit, the fast Ethernet LAN, the gigabit Ethernet LAN, and the organization uses switches in each LAN. So दोनों LANs में दो switches use हो रहे हैं. See on the left hand side we have a switch connecting the multiple computers, and on the right hand side also there is a switch which is connecting the multiple computers in using the switch. तो दो LANs हैं, अब उन दोनों को भी आपस में आपने स्विच से कनेक्ट कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, आप यू कैन इमेजिन कि जो गीगाबिट लैन लेफ्ट हैंड साइड में वो हमारी लैब 1 है, दूसरी गीगाबिट लैन है उसमें भी स्विच है, वो दूसरी लैब है हमारी लैब 1 एंड लैब 2, और दोनों आपस में बड़े वाले स्विच से कनेक्टेड है जो कि बीच में मिडिल में है। और फिर ये फर्दर स्विच जो है टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट, पूरे आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए हमने एक राउटर भी कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, नाउ आई थिंक यू कैन इमेजिन द configuration in our college. Okay, so lab 1 suppose left hand side, lab 2 suppose on the right hand side, दोनों एक बड़े स्विच से कनेक्टेड है सारी मशीन्स, एंड देन दे टू कनेक्ट टू द आउटर वर्ल्ड टू द इंटरनेट वी हैव राउटर ऑन टॉप ऑफ इट. So our router will change the MAC addresses it receives because the MAC addresses have only local jurisdiction. The MAC address का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ लोकल एड्रेसेस तक ही है, और इट इज ओनली विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे ही मैक ये कन्वर्जन की लिंक एड्रेसेस को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, सपोज मैं इंटरनेट पर मैंने कनेक्ट किया उनको मशीन को, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आई बी नीडिंग द आईपी एड्रेसेस टू द आउटर वर्ल्ड. तो ये लिंक उसको मैप करेगा कि लिंक एड्रेस को, लेयर एड्रेस को चेंज कर देगा आईपी एड्रेस में, इट विल कन्वर्ट एंड नॉट this router will allot one IP address to the machine which wants to connect to the outer world. और फिर वो उस IP एड्रेस को लेके वो पैकेट फॉरवर्ड होगा कि इस IP से इस मशीन से मेरा डेटा आ रहा है, और जो भी हम आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट करना चाहें तो फिर उस IP पे कनेक्ट करेगा डेस्टिनेशन IP. So that's how and that's why routers need to convert the link layer addresses to the IP addresses, or they need to map the link layer addresses to the IP addresses. So in this chapter so far we have just discussed the basics about the routers, the routing mechanism, the link layer addresses, the hubs and the repeaters and the switches. So we'll be discussing in detail how the switches and the routers behave when they are doing the forwarding and the routing in the next chapter. So for today's class, that's all we have finished. We are done with the 3 types of connecting devices network. So I'll take your attendance in 2 minutes. Just wait. Do you have any doubts now? No, ma'am, not now. Okay. So meanwhile, I access my Excel sheet, attendance sheet. I just want to ask all of you, do you have any doubts, or do you want to have any doubts class tomorrow? Because we are done with unit 3 and we have started unit 4 today. You want to ask any doubts, or should I take the regular class tomorrow?